the diseases. So let's start our discussion regarding career about ITI students after their ITI. So we'll be continuing the conversation both in English, Bengali, and if required in Hindi also. And I will hope a questionnaire after the discussion. Okay. So mainly we do have a question on behalf of the ITI college that after ITIs students do join different type of work or they are associated with industry. But unfortunately, many lose the tempo of their studies, or we can rather say they don't get the opportunity to study further while doing the job. Keeping this scenario in mind, a new plan in education system is being launched, and this plan had updated a very positive vibes for the ITI students. Now we from CCOM Skills University are the execution partner of this courseware. This courseware is known as vocational degree. Those who have completed their ITIs and working with different organizations or working in industries or in the floors or maybe self-employed, they may have the turner to do their graduation courses, but to them opportunity is not more. So due to the lack of opportunity, they do quit from their job and restart their education, and after that many join in different segments and sectors. But now it is a very good news for them that they do not have to leave their job at this point of time, neither they have to quit from their work. With this working arena, they can complete their education. এই যে পড়াশোনার বিষয়টা রয়েছে ITI এর পর, অনেকেরই কিন্তু করার সদিচ্ছাটা থাকে, কিন্তু সুযোগ এবং সুবিধে দুটো না আসার দরুন তারা কিন্তু সেই পয়েন্ট থেকে সরে যায় এবং দেখা যায় তারা যে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে সেই কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাকে কিন্তু জয়েনটা করতে হয় প্রোগ্রামটার মধ্যে, এই শিক্ষাগত প্রোগ্রামটার মধ্যে। হয়তো তার ইচ্ছে থাকে যে কর্মক্ষেত্রটাকে চালিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু দেখা যায় যে একটা সময়ের পর তার পড়াশোনার সাথে কর্মক্ষেত্রের একটা যুদ্ধ হয়, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। তো সেইটাকে মাথায় রেখে আমাদের ভারতীয় শিক্ষা দপ্তর ইউজিসি একটি নতুন এডুকেশন প্ল্যান নিয়ে এসেছে, ভোকেশনাল ইন গ্র্যাজুয়েশন। এইটার সুবিধে হচ্ছে যারা পড়াশোনা করছে তারা কাজটাও করতে পারবে। মূলত ITI স্টুডেন্টদের জন্য যে তারা কাজ করতে করতে নিজের পড়াশোনাটাকে কমপ্লিট করতে পারবে, মানে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিটা কমপ্লিট করতে পারবে। এই প্রোগ্রামটা 3 বছরের প্রোগ্রাম। ফার্স্ট ইয়ার হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল, সেকেন্ড ইয়ার হচ্ছে অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল, থার্ড ইয়ার হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ইন ভোকেশনাল।
এবং এই 3টে বছরই সে কিন্তু করতে পারবে তার মতন করে কাজ করতে করতে। তাকে কিন্তু কর্মরত অবস্থায় পড়াশোনাটা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাই তো বলছে, এই পড়াশোনা করতে গিয়ে তাকে কিন্তু কর্মটাকে বা তার কাজটাকে ছাড়তে হবে না। এই প্রোগ্রামটার আমাদের তরফ থেকে পোশাকি নাম দেওয়া আছে আর্ন অ্যান্ড লার্ন, রোজগার করতে করতে শিক্ষা। এবং এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটার মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট আছে। কোন স্টুডেন্ট আইটিআই এর পর 1 বছর ডিপ্লোমা করার পর যদি সে মনে করে যে এই কোর্সটাকে সে কমপ্লিট করতে চায়, কিছুদিন পরে তার এই মুহূর্তে সেই সামর্থ্য হচ্ছে না, সে কিন্তু সেই মুহূর্তে ডিপ্লোমা করে স্টপ রেখে আবার পরের বছর থেকে শুরু করতে পারে। তার জন্য কিন্তু প্রথম বছর ডিপ্লোমাটা নষ্ট হবে না। সে যখনই আবার নতুন করে শুরু করবে সে কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাডমিশনটা পাবে। এটা মাল্টিপল এন্ট্রি এক্সিট প্রোগ্রাম, তো যেটা খুব সুবিধাজনক বিষয়। আর আরেকটি খুব বড় বিষয় হচ্ছে যে এই পড়াশোনাটা যেহেতু অনলাইন মেথডে হবে সেহেতু এখানে কাজটার প্রাধান্য বেশি পাবে। অন দ্য ফ্লোর, ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি and working with the industry is the main focusing point. এখানে কাজটাই হচ্ছে মূল পড়াশোনা। So working should be continued, তার সাথে সাথে পড়াশোনাটা চলবে। সবচেয়ে পজিটিভ ব্যাপার যেটা আমাদের ইউনিভার্সিটি, যেহেতু এটা আর্ন অ্যান্ড লার্ন প্রোগ্রাম, আর যেহেতু এটা আমরা পড়াশোনার সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে জায়গায় তাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এই কাজের জায়গা বা কর্মক্ষেত্রের জায়গা প্ল্যাটফর্মটা আমরাই তাদের তৈরি করে দেব। আইটিআই যে ডিভিশনগুলো আছে, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ফিটার, প্লাম্বার, ওয়েল্ডার, সেই সেকশনগুলোর উপরই কিন্তু এদের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিটা হবে। তাদের এমনভাবে কোর্স ওয়ার্কটাকে করানো হবে যে তাদের কখনো পিছিয়ে পড়তে হবে না। তারা সাবজেক্টিভ মডিউলেশন, প্র্যাকটিক্যাল মডিউলেশন অফ দ্য ক্লাস এবং তার সাথে দ্য কমিউনিকেটিভ স্ট্রাকচার অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, এই পুরো বিষয়টাই তারা শিখবে। এই পুরো মাধ্যমটা অনলাইনের ওপর দিয়ে যাবে এবং তার সাথে যেটা তাদের কাছে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, এই 3 বছরের সার্টিফিকেশন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ভোকেশনাল ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু এনি ট্রেডিশনাল ডিগ্রি অফ বিএ, বিকম, বিএসসি। এবং এই 3 বছরের সার্টিফিকেশন অফ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি নিয়ে সে যে কোনো রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারবে। তাতে তার অগ্রগতি কোনো জায়গায় আটকাবে না। And one of the finest part of this program is that it is a joint venture program between working and learning. সে যেখানেই কাজ করবে সে পুরো সময়টাই কিন্তু কাজ করবে, পুরো উইকডেজে, আর উইকেন্ডে গিয়ে সে অনলাইনে পড়াশোনা করবে। এবং মডিউলেশনটা এইভাবেই সাজানো থাকবে, যখনই স্টুডেন্টের মনে হবে স্টুডেন্ট সেই মডিউলেশনটাকে ডাউনলোড করে নিজের মতন করে পড়াশোনা করে আপডেট করতে পারবে। and this is one of the positive parts of this program. আমরা বহু জায়গায় এই প্রশ্নটা পাই যে পড়তে গেলে আমাকে কি কাজটা ছাড়তে হবে? না, সে কাজ করতে করতেই পড়ছে। হিন্দি ये जो एक सवाल हम लोग के पास हर वक्त आता है, बच्चा पास कर गया फिर क्यों पढ़ेगा? इस पे बात वही है, बच्चा पास कर गया, रोजगार में भी आ गया, मगर बच्चे का पास एक प्रश्न उसका मन में रहता है, जो मेरा आगे अपडेट क्या होगा, मैं कितना आगे जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, डिग्री नहीं है। तो वही डिग्री हम हमारे यूनिवर्सिटी सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी बीवो इन ग्रेजुएशन के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा है। जो बच्चा काम करते करते सीखेगा, काम करते करते पढ़ेगा, उसको
पढ़ने के लिए काम नहीं छोड़ना होगा। जैसे अभी बहुत सारे आईटीआई बच्चे हैं जो गवर्नमेंट की नौकरी करने के लिए आईटीआई को ड्रॉप कर दे रहे हैं, करके खुद से फिर पढ़ाई कर रहा है, खुद से ग्रेजुएशन कॉलेजों में भर्ती भी हो रहा है, हायर सेकेंडरी कर रहा है वगैरह वगैरह। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको ये ऑप्शन दिया जा रहा है। बच्चे का पास ये एक सुनहरा भविष्य का सामना कर रहा है, वो पढ़ के ग्रेजुएट बनेगा, मगर कैसे पढ़ेगा? काम करते करते पढ़ेगा। और रेगुलर कोर्स में जैसे कॉलेज जाके क्लास करके वो ग्रेजुएट डिग्री मिलता है और मार्केट में फ्रेशर होकर निकलता है, इधर में बैचलर इन वोकेशनल में इंडस्ट्री में जाएगा बच्चा काम करेगा और उसके साथ बच्चा ऑनलाइन में पढ़ाई करेगा और उसका जो स्ट्रीम होगा वो अपने स्ट्रीम पे ही पढ़ाई करेगा, उसका सब्जेक्टिव स्ट्रीम में पढ़ाई करेगा 3 साल तक काम करते करते, और उसी के साथ साथ वो ग्रेजुएट बनेगा। तो आगे में क्या होगा, जितना भी गवर्नमेंटी वाला या गवर्नमेंट जॉब्स होगा, चाहे वो उसका राज्य में हो या केंद्र सरकार में हो, चाहे स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, सभी एग्जाम में वो बैठने के लिए उसके पास अलग से कोई एग्जामिनेशन का डिग्री नहीं लगेगा। ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड एंड रजिस्टर्ड परमिसिबल डिग्री है टू सिट इन ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स थ्रू आउट इंडिया। और सबसे बड़ा सुविधा इस कोर्स में ये है, ये जो काम का प्रोसेस लेकर आप लोग को जो इतना हम बोल रहे हैं, पहले से शुरू किए हुए हैं, इस प्रोसेस में ये हम बोलना चाहते हैं, ये काम का जो प्लेटफॉर्म है, ये जो उसका इंटर्नशिप जॉब असिस्टेंस प्लेटफॉर्म है, ये हमारे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा बच्चे लोग के लिए। ऐसा नहीं जो बच्चे को अलग से ढूंढना होगा, ये ऐसा है बच्चे को हम ही लोग प्लेस करवाएंगे इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउस में वो फ्लोर में काम करेगा, काम सीखेगा, बाकायदा वो खुद एक्सपीरियंस बनेगा और उसके साथ साथ वो ऑनलाइन में भी पढ़ाई करेगा और इसी पढ़ाई के साथ वो 3 साल पढ़ेगा, ग्रेजुएट बनेगा। इसके मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। मैं और एक बार बोलना चाहता हूं, इसके मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। मतलब जो बच्चा 1 साल के लिए आ रहा है उसको डिप्लोमा डिग्री मिल रहा है, जब भी जाके वो दूसरा साल में एडमिशन लेगा तब उसका एडवांस डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, तीसरा साल जाकर वो एडमिशन लेगा उसको ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा, और हाल ही साल में उसको एक ही बार यूनिवर्सिटी में आके एग्जाम देना है। बाकी टाइम वो काम में जुड़ा रहेगा, जन से जुड़ा रहेगा, जड़ से जुड़ा रहेगा और साथ में वो ये काम करता रहेगा। और जो भी क्लासेस होगा, जो भी कुछ होगा, सभी ऑनलाइन बनेगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। उसका भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी अपडेट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तभी वो बोल पाएगा थ्रू द मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप। क्योंकि बच्चे जब क्लासेस करेंगे उसके ग्रुप बनेंगे, टीचर्स रहेंगे ग्रुप में, फैकल्टी सारे रहेंगे और उसका क्वेश्चन आदान प्रदान चलते रहेगा उसका साथ में। दिस इज अ सिचुएशन आई वांट टू एक्सप्लेन इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी वेंचरस सिचुएशन वेयर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गेटिंग द स्कोप after ITIs, not only the segment of earning but also the segment of completing their graduation. That is also a dream for them, and especially there is another option. Once you complete your ITI and if you do your diploma in this vocational for 1 year, you get the option also to do your BTech degrees. This is being circulated by Government of India Education Department. So these are the facilities that is being prolonged with this program. This is a unique program with intensity, and rather I will say it brings lots of light and hopes to the students who are performing regarding this courseware. The another part is there. We should discuss about this. There are many students who have the question of studying because as they are working,
as they are working, they lack the velocity of their education. I also keep this thing in mind. I want to have a discussion with this issue. जो लोग पढ़ाई करते हैं वो पूरा ही पढ़ाई करते हैं, काम करते करते हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बात है। काम करने का बाद हमारे दिमाग जो होते हैं थोड़ा बहुत सुस्त हो जाते हैं, मगर आपको याद रखना है दिस इज अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एस्पिरेशंस। इसका जो पढ़ाई है ये पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड है। सो इट इज नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, द सब्जेक्ट इज ऑल्सो ओरिएंटेड विद द प्रैक्टिकलिटी जो बच्चे इंडस्ट्री में कर रहे हैं, सीख रहे हैं एज एन इंटर्न एंड लर्निंग द बेस्ट। Apart of this, we had included the communication structure in this course, apart of the subjects, because देखा जाता है ITI से बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस में माहिर होते हैं और उसको रीजनल लैंग्वेज के बाद आगे बढ़ने के लिए उसका रेमुनरेशনের পার্টটা ওই বলি चांसेस স্টুডেंट couldn't do that. नहीं मिलता है। तो ये भी एक মানে খরচাটা কি বলা হবে এই প্রোগ্রামে বলা হবে सुविधा है जो हम लोग इस कोर्स के साथ उसको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जो ये चलते रहेगा। और पूरा जो मॉड्यूल होगा पढ़ाई के वो ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस और बॉक्स क्वेश्चन में होगा। मीन there is a mail ID that will be provided from the university for interaction. बाकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बढ़िया रहेगा। And for the students, I hope there are a lot of students who are also attending this program. आप लोग को हम यही बोलेंगे, आप अपना भविष्य को देखिए और सोचिए जो आगे क्या है आपके सामने। ये एक मौका है, सुनहरा मौका, जो आपको रोजगार के साथ पढ़ाई का भी अवसर दे रहा है, आप जिसको आगे ले जा सकते हो। और एक है, अगर आप ट्रेडिशनल में जाते हो तो आईटीआई के बाद आपको फिर वही कोर्स में जाना है जहां पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, थ्योरी मिलेगा। मगर ये बीवोक जो है वो आपको दो ही फलाना देगा, एक प्रैक्टिकल भी देगा, एक थ्योरी भी देगा। आपका पढ़ाई जो होगा वो थ्योरी में होगा ऑनलाइन, प्रैक्टिकल जो होगा वो इंडस्ट्री में आप खुद काम करके होशियार बन के जान रहे हो। 3 साल बाद जब आप निकलोगे ग्रेजुएट डिग्री लेके इंडस्ट्री में, तब आप कहलाओगे एक्सपीरियंस स्किल्ड ग्रेजुएट एम्प्लॉय। एक्सपीरियंस स्किल्ड ग्रेजुएट एम्प्लॉय मतलब आप तब खुद को जांचोगे for the higher post in the organization. You will not work as a general formulative. ये कोर्स का मॉड्यूल में एग्जाम एक ही साल होता है सालाना। 3 साल में अगर आप करते हो, 3 साल आपको एग्जाम के लिए आना है। अभी और एक बात आप लोग को शेयर करना चाहता हूं इस प्रोग्राम को लेके। इसके जितने भी स्ट्रीम्स है ये लगभग आपके स्ट्रीम्स को कवर करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मैकेनिकल, ये सब कवर करते हैं। और आज के डेट पे ये पॉपुलर स्ट्रीम है जहां पे बहुत सारे अवेलेबिलिटीज है। इसी को लेके हम आपके पास आते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके मॉड्यूल ऑफ पढ़ाई को लेके। और अभी जो बात करेंगे थोड़ा सा मॉड्यूल और जॉब इंफॉर्मेशन के बारे में इन द इंडस्ट्री, वो
हमारे कलीग मिस्टर रणदीप मुखर्जी will take care of this and he will be the finest person to explain you in detail. Please, sir. Good afternoon, respected teachers, principals, and my dear students. This is रणदीप Mukherjee who will take you to the job portion of this particular course. And already Ashim sir had already spoke to you regarding the education and the course about his degree and diploma part. जॉब के लिए हम लोग ये एक लौता ऐसा कोर्स है, जब भी आप कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए देखेंगे तो पहले आपका कोर्स कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद आपको जॉब में प्लेस किया जाता है। लेकिन एक ऐसा लौता ये कोर्स है जिसमें आपको डे 1 से जॉब के लिए आपको प्लेस किया जाएगा, उसके बाद आपका पढ़ाई जो लर्निंग है वो शुरू होगा। जैसे कि असीम सर ऑलरेडी आपको ये बात बोल चुके हैं कि इस कोर्स में आपका 70% जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ओजेटी हम लोग बोलते हैं या इंटर्नशिप बोलते हैं, ये एक्चुअली हम लोग जो प्रोवाइड करेंगे वो पूरा जॉब ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट्स है, इसके लिए हमको बोलना पड़ता है ये इंटर्नशिप है या ओजेटी है। तो इसमें 70% जो ओजेटी होगा, जो यूजीसी का रूल है उसके हिसाब से जो 70% आपका ओजेटी होगा, तो इसके अंदर ही आपका जो सीखने का काम है वो ज्यादातर रहेगा और 30% जो आपका लर्निंग है वो ऑनलाइन रहेगा। तो जैसे कि कोई बच्चा अगर एडमिशन लेता है इस कोर्स के अंदर, मैं अगर ये कोविड सिचुएशन को थोड़ा अलग रख के सोचूं, तो जब भी एक बच्चा एडमिशन लेता है तो हम पहले उसको प्लेस करते हैं। अब कैसे प्लेस करते हैं? हम लोग 15-20 जन का एक ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि एडमिशन होता रहता है बैच बाय बैच, हम लोग 15-20 जन का एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अंदर बच्चे प्लेस होते हैं। ज्यादातर जो प्लेसमेंट होते हैं हमारा वो होता है आपका मोस्टली 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया में, दैट इज महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। अब ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे हम लोग जो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट्स है, इस ऐसे कंपनीज में हम हमारे बच्चों को भेजते हैं। अब ये जॉब जो बच्चा करेगा, यहाँ से जाके ये जॉब जो बच्चा करेगा, तो वहां पे उसको क्या क्या सुविधा मिलेगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि एक बच्चा यहाँ से जाता है, जाके जॉब के लिए वो जाता है, वो कोई भी ट्रेड से हो, आईटीआई के कोई भी ट्रेड से हो, उनको वहां पे जाके पहला बात जो है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो हम लोग वही कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं जो डायरेक्टली आपका एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। तो हॉस्टल में बच्चा लोग रहेंगे। अब आता है, पहले मैं जॉब में बाद में जा रहा हूं, जैसे कि रेगुलर लिविंग में जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जब एक बच्चा घर से बाहर जाता है उसमें मैं पहले आ रहा हूं। तो ये आपका एकोमोडेशन हो गया। इसके बाद जब वो आता है उसका फूड, रेगुलरली वी यूज्ड टू टेक फूड 3 times a day. In most of the companies they will provide at least 2 times of food at the time of doing the job. जैसे बच्चा आपका फ्लोर में रहेगा, कंपनी साइट में रहेगा, फैक्ट्री साइट में रहेगा, 2 टाइम या तो ब्रेकफास्ट लंच या तो लंच डिनर, उस टाइम वो वहां पे शेड्यूल जो रहेगा उस टाइम पे वो वहीं पे रहेगा। तो वो जो फूड है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। एक टाइम का जो खाना है, मोस्टली एक टाइम का जो खाना है वो मान के चलिए रात का अगर डिनर का बात हो, वो बच्चे हॉस्टल में जो 15-20 जन का जो ग्रुप रहता है उन लोगों का, वो अपने आप ग्रुप बना के वो अपने आप वो लोग बना लेंगे और खाएंगे। ये हो गया आपका एकोमोडेशन एंड फूड की बात। नेक्स्ट आई विल कम टू द ट्रांसपोर्टेशन।
because the logistics part will be very very important in case of other state living. So people have to bear a lot of money to from hostel to the factory side. यहाँ पे आके आपको उसको हम लोग हमारे कंसिडरेशन में पहले ही ले लेते हैं कि हॉस्टल से बच्चा जब जाएगा आपका फैक्ट्री साइड में, और फैक्ट्री साइड से जो रात को वापस आएगा आपका हॉस्टल में, द टोटल ट्रांसपोर्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी बेयर्ड बाय द कंपनी. सो जो 3 major parts I have already covered, that is food for 2 times, आपका accommodation and transportation. Now I am coming to the company part or the job part. Basically, as I have already said, there are a lot of manufacturing units in terms of automobile, in terms of other industries are there. बच्चे लोग वहाँ पे प्लेस होने के साथ साथ सभी जो ट्रेड है, जैसे कि असीम सर ऑलरेडी आपको बोले हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फिटर वेल्डर सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, तो हर जो टाइप का आपका स्टूडेंट रहेगा वहाँ पे, उसको उसी हिसाब से उसको जॉब दिया जाएगा वहाँ पे. अब जॉब में क्या फैसिलिटी है, मैं सैलरी पार्ट पे आता हूँ. 8 घंटे का ड्यूटी होता है. 8 घंटे का ड्यूटी के लिए एक ITI पास बच्चे के लिए आप पकड़ के चलिए 9 से 10,000 रुपया कैश इन हैंड मिलेगा. They will earn 9 to 10,000 rupees, which is cash in hand. With addition, they will get 1 month salary extra, that is a bonus for 1 year. That is, they will work for 12 months and they will get the salary of 13 months. In addition, they will get ESI, मेडिकल जो सुविधा उनको चाहिए वो भी उनको मिलेगा. अब 8 घंटे का ड्यूटी के बाद, if anybody, any student, any candidate, if he go for 2 hours extra, जो ओवर टाइम होता है, अगर वो ओवर टाइम करना चाहता है 2 घंटा या 4 घंटा, तो उसके लिए उसको अलग से पैसा मिलेगा उसके लिए. मैं अगर जब उसको खाने का और रहने का उतना परेशानी नहीं होगा, तो वो 8 घंटे के जगह 10 घंटा भी काम कर सकता है बहुत आराम से. जब एक बच्चा 10 घंटा काम करता है तो वही सैलरी उसका हो जाता है 12 से 13,000 रुपया महीना. और मैं उसके बाद 12 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 16-17,000 हो जाएगा. मैं अगर रेगुलर लेके चलूं, 10 घंटा एक बच्चा काम करता है, तो उसका 12 से 13,000 रुपया उसका सैलरी होगा. तो इसके साथ साथ जो उसको मिलेगा, फूड, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन उसको मिल रहा है. और अभी जो काम करते हुए वहां पे वो लोग सीखेंगे, पहला 6 महीना तो उन लोगों का काम सीखते हुए जाएगा. ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर, सब कुछ लेके. उसके बाद वो 6 महीने के बाद एक पोजीशन पे आएगा जहां पे उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि वो प्रोडक्शन लाइन में खड़ा हो, जो भी उनको जो इंडस्ट्री में उनको डाला जाएगा. और सबसे सुविधा का बात है, यहाँ जो भी बच्चे जाएंगे बैच बाय बैच 15, 20, 25 ऐसे जाएंगे, तो सब लोग साथ में रहेंगे. एक जगह पे दिखेगा कि एक शॉप फ्लोर में 200 बच्चे काम कर रहे हैं, 200 हमारे ही बच्चे हैं. तो ये एक बेसिक सुविधा उन लोगों को रहेगा कि एक दूसरे का ख्याल भी वो लोग रख पाएंगे. अभी मैं सर ने जैसे के लिए बोला है, जे कोई 1 साल कंप्लीट करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल कंप्लीट करेगा तो उसे एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 3 years, if somebody completes 3 years, he will be getting the graduation degree. उनको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा. अब उसके बाद क्या होगा, ये जो जॉब है, जॉब जो बच्चा वहां पे काम करेगा सिंसियरिटी के साथ, जॉब उसका हमेशा रहेगा. जब जॉब कहीं भी चला नहीं जाएगा, नौकरी नहीं जाएगा. लेकिन ये पढ़ाई हो रहा है इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली स्किल्स के ऊपर है, तो उसका मेन इंटेंशन ही है जो आपका बेसिकली गेट द
college dropouts back to the education by putting in skilling programs so that their career could be enhanced. उन लोगों का करियर आगे बढ़ सके, वो एक जगह पे रह ना जाए। तो हम लोगों को कोशिश यही रहेगा जो 10 से 12,000 या 14,000 में ये लोग रुक ना जाए, उसके लिए ये पढ़ाई चल रहा है कि जब कंप्लीशन होगा, 3 इयर्स जब कंप्लीट होगा, क्योंकि इस कोर्स का बेसिकली 3 मेजर डायमेंशंस है। नंबर 1 इज you will be getting 3 years experience at the time of studying. Number 2 is you are getting 4 to 4.5 lakhs of rupees you are earning. Number 3 is your education, you are completing the graduation. तो ये 3 मेजर बेनिफिट है जो आपका एक साथ हो रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन डिग्री की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग किए हुए हैं, जो बीए बीकॉम बीएससी हम लोग करते हैं, तो उस टाइम में हम सिर्फ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हम लोगों का कोई जॉब इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। फिर उसके बाद जब हम इंटरव्यू में जाते हैं कि हमको जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमको पूछा जाता है आपको कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट वी आर अ फ्रेशर कैंडिडेट। तो उस हिसाब से हम लोगों का तनख्वाह तय होता है, उस हिसाब से हम लोगों का सब कुछ तय होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ से एक बच्चा जब जाएगा, वो 3 इयर्स उनका आपका डायरेक्ट ऑन फ्लोर ट्रेनिंग रहेगा, उनका ग्रेजुएशन डिग्री रहेगा, और 3 साल में एक अच्छा खासा अमाउंट वो लोग अर्न करेंगे। तो ये 3 मेजर बेसिक डायमेंशंस है इस प्रोग्राम के लिए। अब मैं आपके पास आता हूँ जो यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन पार्ट है, इसके लिए यूनिवर्सिटी का जो एक कॉस्ट है, तो हमारा ये विवो कोर्स कैरी ऑन करने के लिए क्या चार्जेस है। पहली बात तो ये है, आपका जो अर्निंग पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन जॉब, वो मैंने आपको बता दिया है। यूनिवर्सिटी आपको जॉब देने के लिए या नौकरी देने के लिए एक पैसा भी चार्ज नहीं करता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको चार्ज करता है आपका जो ऑनलाइन पढ़ाई होगा, यू विल गेटिंग ट्रेन्ड बाय ऑनलाइन, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 2nd ईयर एंड 3rd ईयर, यू विल कम बैक टू द कैंपस एंड फॉर एग्जामिनेशन पार्ट एंड सर्टिफिकेशन। तो ये टोटल सब कुछ कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी सिर्फ एक बच्चे को महीना 2,000 रुपया चार्ज करता है। आई रिपीट, 2,000 रुपीज फॉर पर मंथ पर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चार्ज करता है, जो कि आपको घर से लाना नहीं है, स्टूडेंट को घर से लाना नहीं है, उनको एक पैसा भी घर से लाना नहीं है। स्टूडेंट वहां पे तनख्वाह रोजगार करेंगे, उनका अर्निंग अर्निंग वहां पे होगा, उसके बाद उनका सैलरी होने के बाद वो 2,000 रुपीज पर मंथ पे करेंगे यूनिवर्सिटी को। ये इसका बेसिक मॉडल है। और इसके साथ साथ जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है, उसका भी हम लोगों को जो सरलीकरण हम लोगों ने किया है, we used to have a admission charge of 6,000 rupees at a time, which is other than that 2,000 rupees for per month. But considering the present scenario,